Good morning, beta. Good morning, everyone. So, beta, in previous lecture, we were discussed about the importance of industry, and there are two types of industry. One is small scale industry, and another one is large scale industry. So, today is the most important topic of industry, that is Industrial Policy Resolution Act 1956. Industrial Policy Resolution Act 1956. In short form, it is called IPR 1956. IPR 1956. So there are three principal elements of IPR. Three principal elements of IPR. In IPR के three principal elements. First one is threefold classification. Threefold classification of industries. So threefold classification of industries means there are three types of industry. It means there are three categories of industry. Like first one is those industries which is regulated by private sector, which is owned, regulated and managed by private sector. And the another one is which is owned, regulated by public sector. So with those industries which is owned or regulated or managed by public sector, there are three classified industries. First one is private sector, those industries which is owned by, मतलब मालिक कौन होगा, private sector. And the second one is which is owned by public sector, and which is owned by both the sector. Or you can say that in third category, except first and second, मतलब कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के जो इंडस्ट्रीज बची वो आपकी आ जाएगी थर्ड पॉइंट में आ जाएगी. इसको आप कह सकते हो जॉइंट सेक्टर कह सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड जॉइंट सेक्टर, मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलके उन इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं. So, sir, private sector, those industries which is handled by private sector are called like mining industry हो सकती है सर. Mining industry, manufacturing industry, ठीक है. And in public sector like atomic energy, रेलवे. सर रेलवे के कोचेस भी तो बन रहे होंगे ना. डिफेंस. सर जो इन आइटम्स के लिए, इन चीज़ों के लिए आइटम्स प्रोवाइड बनाते हैं उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर. सो देयर आर threefold classification of industries. We were discussing about the IPR 1956, which is most important topic of industry. So there are three principal elements of IPR. First one is threefold classification of industry. In threefold classification of industry, there are three types of industry. There are three emerging modes of industry, that is private sector, public sector, and except first and second, it means joint sector. So private sector industries like mining industry, manufacturing industry, which produces consumer goods like books, copy, pens, etc., etc. So public sector industries are like they produces atomic energy goods, or like they produces railway goods, capital goods, defense goods, and etc., etc. And the next point is industrial licensing. So there are three principal elements. Now there are three principal elements of industries. IPR 1956. It means after 1956, some rules and regulations is changes. Some rules and regulations changes in industries. मतलब सर 1956 के
पहले तो बैकवर्ड इकोनॉमी थी और अभी भी सर स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्लोली ग्रोथ हो रही है, बट हमने कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा सर, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बनाया, जिसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड होने वाले चेंजेस को नोट डाउन करा और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करी रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज़। सर इंडस्ट्री इज़ अ मेजर एलिमेंट जिससे हमारी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री को डेवलप करना था। सर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए ये IPR 1956 बनाया गया है। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस करे गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करे गए हैं, ठीक है। तो सर सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या आएगा सर, किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए लाइसेंस का होना कंपलसरी है। सर एनी प्राइवेट इंडस्ट्री विच वी हैव टू सेट अप, वी गॉट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइसेंस चाहिए सर, कहाँ से? गवर्नमेंट से एक लाइसेंस चाहिए उसके लिए। बेसिकली सर licensing policy says that industrial licensing policy says that in 1956 IPR 1956 जो सर रूल बना है, इसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ये कहता है कि अगर आप बैकवर्ड और हिली एरियाज़ पे अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो लाइसेंस तो आपको चाहिए, बट जो लाइसेंस के प्रोसीजर्स होंगे या लाइसेंस आपको ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई डिफेंस गुड्स बनाना चाहते हो सर, डिफेंस गुड्स के लिए तो लाइसेंस कभी भी देगा नहीं गवर्नमेंट हमको, उसके राइट्स हैं सब गवर्नमेंट के पास। तो एनी गुड्स विच वी हैव टू प्रोड्यूस इन एनी एरियाज़, स्पेशली इन बैकवर्ड और हिली एरियाज, क्योंकि बैकवर्ड और हिली एरियाज़ में डेवलपमेंट कम होता है। सो बैकवर्ड और हिली एरियाज़ को डेवलप करने के लिए हमारे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ने ये कहा कि यहाँ पे सर अगर आप हिली एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, सो यू हैव easy registration of licensing policy, or you can say that कि in backward regions of the country this was to promote regional equality। सर इससे regional equality promote हो रही, that's why industrial licensing आपको ईजिली कुछ जो प्रोसीजर्स थे वो ईजी कर दिए गए, फीस लाइसेंसिंग फ़ीस कम कर दी गई कि लोग अपने न्यू इंटरप्राइजेस को एक्सपैंड कर सकें और उन एरियाज़ पे सेटअप कर सके जहाँ से सर उन एरियाज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज, मैंने कहा 3 सर प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं IPR 1956 के। एंड थर्ड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल कंसेशंस। सर ये सब पॉइंट्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ना कि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सके, बढ़ा सके, इंक्रीज़ कर सके, एक्सपैंड कर सके, ब्रांचेस खोल सके इंडस्ट्रीज़ की। सो जिससे होगा क्या, जिससे हमारी कंट्री का ऑटोमेटिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। सर लोगों को रोजगार मिलेगा, एवरीवन गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड द एरियाज विच इज़ सिचुएटेड नियर इंडस्ट्रीज इज़ डेवलप द इलेक्ट्रिसिटी facilities improved day by day with the help of industries. So sir industrial concessions, what do you mean by industrial concessions? सर प्राइवेट इंटरप्रेनर्स को, प्राइवेट ओनर्स को इंडस्ट्रीज में कुछ ना कुछ कंसेशंस मिलेगा इफ दे सेट अप देयर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स। सर इफ दे set up their industries in backward regions, then the government provide them some concessions. Sir, concessions like tax holiday. Sir, what do you mean by tax holiday? For one day, the government provide freedom from the payment of tax for some time. मतलब कि एक दिन जो सर उस दिन जो प्रोडक्शन हुआ उस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे इन टैक्स हॉलीडे। एंड सब्सिडी इन पावर सप्लाई।
subsidy in power supply, sir. If some entrepreneurs set up their industries in backward region, then the government provide them tax holiday and subsidy in power supply, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ना कुछ सब्सिडी मिल जाएगी, कंसेशंस मिल जाएंगे सर. किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में. इससे होगा क्या सर? दे जस्ट वांट टू प्रमोट कि बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाए. सो जस्ट बैकवर्ड रीजन्स में अगर इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो सर उससे क्या होगा? उससे उस एरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. दैट इज कॉल्ड थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन. सर ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, देन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देन इंडस्ट्रियल कंसेशंस की बात हो रही है कि सर किसमें बात हो रही है सर? IPR 1956 में सर. ठीक है. And the next topic is sir, features of a small scale industry. Features of a small scale industry. So first we have to know that what do you mean by small scale industry? First we have to know that what do you mean by small scale industry? So sir, small scale industries are those industries whose capital up to rupees 5 lakh. Sir, whose capital rupees up to 5 lakh. In 1951, सर 1951 तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी जिनकी कैपिटल 5 लाख है, अप टू रुपीज़ 5 लाख तक. दे आर कैटेगराइज्ड अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. एंड सर इन प्रेजेंट एरा it increases up to 5 करोड़ इन आप कह सकते हो कि इन प्रेजेंट एरा, मतलब सर अभी के समय उन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैटेगराइज करेंगे. दोज इंडस्ट्रीज़ हुज कैपिटल अप टू रुपीज़ 5 करोड़. तो इनके बेटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं. क्या क्या? सो फर्स्ट पॉइंट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव, यूज लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली. हाँ सर, अगर बेटा इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो बहुत सारे ऐसे आगे आपको चैप्टर मिलेंगे जहाँ पे ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो कि सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली. सर लेबर इंटेंसिव मीन्स जहाँ पे सर लेबर इज़ मोर देन मशीनरी. सर मशीन कम होगी और लेबर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे इन labor intensive technique that is called LIT. And one point is also that capital intensive technique, that is where the machine is higher than labor. So sir, small scale industries employment friendly and use the labor intensive technique. ठीक है sir. Next point is small scale industries locational फ्लेक्सिबिलिटी. सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोकेशनल फ्लेक्सिबल होती हैं. सर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दे कैन मूव, द इंडस्ट्रीज इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ईजी प्रोसेस. लाइकवाइज रिलायंस पेट्रोलियम बेटा, जहाँ पे रिलायंस रिफाइनरी करता है क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम डीजल में, अगर आप उसको देखोगे वो 13 किलोमीटर में स्कैटर्ड है. अगर आप उसको मूव करना चाहें किसी दूसरे प्लेस तो सर पॉसिबल नहीं है. बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइक कारपेंटर, लाइक कॉबलर, आपका ये सब किस में आ जाएंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएंगे. जो भी छोटे मोटे हैंडमेड गुड्स बना रहे हैं आर कैटेगराइज्ड अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ये ईजिली कहीं भी शिफ्ट हो सकता है बिजनेस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सर. And last point is
And last point is, sir, a small scale industry needs a small investment. हाँ sir, needs a small investment and equity oriented. सर इट मीन्स ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट सर. लाइक सर आपको कोई कारपेंटर की शॉप खोलनी है, इट कॉस्ट लाइक 2-3 लाख 4 लाख. अगर आप हैंडमेड्स कारपेट बना रहे हो सर, हैंडमेड कोई पॉट बना रहे हो सर, कितना पैसा लगेगा उसमें, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख. और सर इक्विटी ओरिएंटेड मतलब होता है कि कोई भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी किसी भी सोसाइटी का पर्सन इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ओपन कर सकता है. बट इफ वी शिफ्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, normal person cannot open a large scale industries, because in large scale industries it includes a huge cost for purchase of machine, for purchase of plant, building, land, tools, equipments. So beta small scale industries need small investment and equity oriented. It means any person can open their small scale industries or handmade industries. So it is a small scale industry need small investment and equity oriented. These are the three silent features of a small scale industry. First one is labor, it is labor intensive technique, and second one is locational flexibility. You can move you can shift your business, small scale business, from one place to another. And the last one is small scale industry need a small investment, or it is called equity ओरिएंटेड. सो कोई चैप्टर नहीं है ये इंडस्ट्री का, आपकी बुक में चैप्टर दिए, जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है. मैंने जो बात बताई उसको टिक कर लेना, जस्ट उतना ही पढ़ना और कोई बातें मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपका एक छोटा सा टॉपिक है. लास्ट टॉपिक बचा हुआ साइलेंट फीचर्स एंड देयर गुड एंड बैड इम्पैक्ट. सो विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट टर्न.